فیصل آباد کے شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ ریاض شاہی چوک سے آٹا سیل ٹرکنگ پوائنٹ تبدیل کر کے اقبال اسٹیڈیم منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں کے لیے سایہ دار جگہ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ گیٹ نمبر 2 خواتین اور گیٹ نمبر 8 مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے۔ بتاتے چلے آپ کو فیصل آباد کے شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ ریاض شاہی چوک سے آٹا سیلز ٹرکنگ پوائنٹس تبدیل کر کے اقبال اسٹیڈیم منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں محمد علی نارو سے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مفت آٹے کی فراہمی کا آج چوتھا روز ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمیں بد انتظامی دیکھنے کو ملی، جس میں کہ جو کارڈ سکین ہونے کا ایشو آ رہا تھا، آئی ڈی کارڈ ایشو سکین نہیں ہو پا رہا تھا، طویل قطاریں تھیں شہریوں کو، اس کا انتظامیہ کی جانب سے روز کی بنیاد پر حل نکالا جا رہا ہے۔ آج جو ہے ریاض شاہی چوک جہاں پر شدید بد نظمی دیکھنے کو ملتی تھی، آج وہ مقام تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسے شفٹ کر دیا۔ اقبال اسٹیڈیم میں اگر بات کی جائے انتظامات کی، تو گیٹ نمبر 2 خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ عثمان آپ کو دکھا بھی سکیں کہ گیٹ نمبر 2 سے خواتین کی انٹرنس رکھی گئی ہے، جہاں پر ان کے بیٹھنے کے لیے، چھاؤں کے لیے سایہ دار جگہ کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر بیٹھیں اور طویل انتظار بھی اگر ان کو کرنا پڑتا ہے تو مشکل پیش نہ آئے۔ ساتھ میں ہی لیفٹ جانب ان کے 5 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں خواتین کو ڈیل کرنے کے لیے، جہاں پر ان کا اندراج ہوتا ہے، سکین ہوتا ہے اور سکیننگ کے بعد ان کو پرچی الاٹ کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عثمان آپ کو اپنی بائیں جانب دکھا سکیں تو مرد حضرات کے لیے گیٹ نمبر 8 پر 6 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر سکیننگ کا عمل جاری ہے اور ان کو آٹے کی فراہمی کے لیے یہاں پر ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں ہی ان کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مرد حضرات کی جو بڑی تعداد ہے وہ یہاں پر بیٹھتی ہے، انتظار کرتی ہے اور یہاں پر ایک باقاعدہ پروسیجر کے ساتھ ان کو لایا جا رہا ہے۔ اگر عثمان آپ کو میرے پیچھے دکھا سکیں، گیٹ نمبر 2 خواتین کے لیے، گیٹ نمبر 8 مرد حضرات کے لیے اور گیٹ نمبر 2 جو گیٹ نمبر 5 ہے، وہاں پر باقاعدہ ٹرک سیلنگ پوائنٹ جو موجود ہیں، وہاں پر ٹرک پوائنٹ رکھا گیا ہے جہاں پر آٹا دیا جا رہا ہے شہریوں کو جو پرچی لے کر جاتی ہیں، خواتین ہوں وہ مرد ہوں۔ وہاں پر ان کو گیٹ نمبر 6 پر، گیٹ نمبر 5 پر ان کو آٹا دیا جاتا ہے اور وہیں سے ان کے ایگزٹ وہ باہر جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اب جو ریاض شاہی چوک کا بہت شکریہ علی اپڈیٹس کرنے کے لیے۔ کمشنر سلوت سعید کا ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے ہمراہ فیصل آباد کے آٹا پوائنٹس کا دورہ۔ شناختی کارڈ سکیننگ میں موجود مسائل کے حل کے لیے فری آٹا فراہمی کا وقت رات 12 بجے تک بڑھا دیا۔ شناختی کارڈ سکیننگ میں موجود مسائل کے حل کے لیے فری آٹا فراہمی کا وقت رات 12 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں شہریوں کو حکومت پنجاب اسپیشل رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں شہریوں کو پریشانی نہ ہو، اسی سلسلے میں تمام تر افسران، ضلع انتظامیہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، تمام تر ایڈیشنل کمشنر جو ہیں وہ خود مختلف آٹا پوائنٹ کا نہ صرف وزٹ کر رہے ہیں بلکہ ایک ایک آفیسر کی ڈیوٹی جو ہے وہ بھی لگائی گئی ہے تاکہ شہری جو ہیں ان کو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ فری آٹا جو ہے یہ مہیا کیا جاتا رہے۔ اقبال اسٹیڈیم میں موجود ہیں جہاں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، جن کی جانب سے شہریوں سے فردر پوچھا بھی جا رہا ہے اور خاص طور پہ ایسی مشکلات جو کہ فری آٹے کے حصول کے لیے پی آئی ٹی بی کی بنائی گئی اپلیکیشن میں انٹرنیٹ سلو ہونے کے باعث آ رہی ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر سلوت سعید صاحبہ، ان سے بھی پوچھیں گے۔ میم یہ بتائیے گا کہ مختلف مقامات پر بیٹھنے کا انتظام بھی ہو گیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، شہری اب بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ کچھ آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ سکین نہیں ہو پا رہے، تو اس کا کیا لائحہ عمل بنایا گیا ہے کہ تاکہ تمام تر شہریوں کو یہ فری آٹے کی سہولت مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں ہی ہم نے تقریباً 44 پوائنٹس ہیں جو کہ شہریوں کی سہولت کے لیے مفت آٹے کے جو ہے اس کے لیے بنائے گئے۔ اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ چپ والے ہیں جو بہت تیزی سے سکین ہو رہے ہیں، ہمارا وہاں پر سسٹم جو ہے وہ ان کو فوری طور پہ فیچ کر لیتا ہے ڈیٹا، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر آئی ڈی کارڈز جو ہیں بہت سیدھا ہو چکے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، وہاں پر ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں پراپرلی کہ آپ جو ہے وہ فیملی میں سے کسی کا بھی آئی ڈی کارڈ لے آئیں جو ٹھیک حالت میں ہے، تو ایک تو وہ آسانی سے سکین ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت سسٹم جو ہے نا اس پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ ڈیٹا وہاں جا رہا ہوتا ہے سرور پہ، تو یہ ہم نے اب انشاءاللہ رات 12 بجے تک یہ اقبال اسٹیڈیم کا جو ہے پوائنٹ اس کو ہم نے فنکشنل کر دی ہے۔ تو جی بالکل، سٹی 41 نے گزشتہ روز خبر دی تھی کہ ماڈل ہائی اسکول میں جو وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر تمام تر سینٹرز پر کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔
रश के पेश नज़र महकमा तालीम और रेवेन्यू स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। रश के पेश नज़र महकमा तालीम और रेवेन्यू स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर तमाम तर सेंटर्स पर काउंटर्स की तादाद में इजाफा भी कर दिया गया है। जंग में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का अमल तेजी से जारी है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, मजीद बताइएगा। रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है मुफ्त आटे की फराहमी का अमल जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें जो है वो 600 से ज़ायद अफराद जो है मज़ीद इंडक्ट किए गए हैं ताकि शहरियों के जो बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं उनकी तमाम तर जो इंक्वायरीज़ हैं उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। इस हवाले से महकमा तालीम और रेवेन्यू का जो स्टाफ जो है वो भी इजाफी तौर पर जो है वो लगाया गया है ताकि जो है शहरियों को जो दरपेश मुश्किलात थी उसका अजाला मुमकिन हो सके। ताहम जो है PITB की जानिब से जो है वो मैसेज मसूल न होने पर बड़ी तादाद में जो गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं उनकी जानिब से भी काउंटर्स का रुख किया जा रहा है। मेरे साथ जो है शहरी मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पे आप आए हैं, कैसे इंतजाम देखते हैं यहाँ पे इस सूरत हाल? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और जो आटा है वो मिल रहा है हर आदमी को इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे जो है आप बैठने के लिए जगह भी जो फराहमी है, इससे पहले भी जो मसाइल का सामना करना पड़ता था वो अपनी मसाइल का सामना देख? नहीं, वो नहीं देख रहे हैं। ज़बरदस्त है माशाल्लाह, अब जो भी है बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई मसला मसाइल नहीं है, ज़बरदस्त हो रहा है काम, जो भी हो रहा है सबको सुकून से जो आटा मिल रहा है वो सुकून से मिल रहा है, कोई मसला नहीं है। का कहना है कि खासी हद तक जो इंतजाम में बेहतरी है। मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। मुख्तलिफ जो है काउंटर्स भी यहाँ पे काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे जो है ख़वातीन के लिए जो है अलहदा से जो है वो काउंटर्स मौजूद हैं। ख़वातीन जो है वो इस सूरत हाल में जहाँ पे जो है वो खासी हद तक जो है इत्मीनान नज़र आती हैं, वहीं पर जो है वो शहरियों की जानिब से भी जो है इस सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। लेकिन ताहम जो है इस हवाले से जो मज़ूर अफराद हैं उनकी भी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी ये दसो कित्थों आए हो ते आटा दे इत्थे लवन आए हो तो की मुश्किलात तो कोई नहीं इत्थे? जी ਅਸੀਂ ਮਲ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਟਾ ਛੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈਆਂ ਆਟਾ ਲਵਣ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? यहाँ पे जो बीना माजूर अफराद बैठे हुए हैं उनका इस हवाले से कहना है कि यकीनी तौर पर जो है इनको जो है वो सहूलत के लिए और इनकी आगाही के लिए जो है यहाँ पे जो स्टाफ की मौजूदगी जो है वो लाजिम है। ताहम जो है इस हवाले से जो है यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, ख़वातीन से बात करने की कोशिश करें। ये दसो कितों आए हो तो कोई मुश्किलात तो नहीं थे आटा लेंगे? नहीं मल मोड़ तो आया तो आटा कोई नहीं मिलिया सानू। की वजह आटा कोई नहीं मिला? उन्हें के तो नहीं मिल सकता। की आखो इस इंतजामिया की इकदाम करने चाहिए? तो असी गरीब बंदा सानू आटा मिले असी केड़ा और शौक नो आया, गरीब बंदा एवें आंदा है, इस वजह तो ही आंदा। जी तुसी दसो इत्थे बैठे हो तुहानू ही आटा हाल ते नहीं मिला? नहीं मिले, कोई नहीं मिले, उन्हें कहे है ही नहीं तुहाडे नाल ते आटा है। बिल्कुल इस वाले से जो है ख़वातीन यहाँ पे जो खासी तौर पे मौजूद हैं, इसमें जो बड़ा जो मसला है वो ऐसे अफराद का है जो गैर रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं और जो गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं जिनको जो है इस हवाले से कोई भी मालूमात नहीं है, वो भी सेंटर का जो है वो रुख करते हैं। ताहम जो है यहाँ पे आकर उनको पता लगता है कि उनके नाम पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है मुमकिन नहीं हो पाई है। बेनज़ीर कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब समंदरी में मुफ्त आटा सेल्स पॉइंट्स कायम न करने पर खदरवाला के रहायशियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरीद वाला रोड ब्लॉक कर दिया। 20 किलोमीटर दूर आटा लेने कैसे जाएं, लोग दुहाइयां देने लगे। मुजाहिरीन ने मुरीद वाला रोड ब्लॉक कर दिया। 20 किलोमीटर दूर आटा लेने कैसे जाएं, लोग दुहाइयां देने लगे। आपको बता रहे हैं समुद्री से जहां मुफ्त आटा सेल पॉइंट्स कायम ना करने पर खदरवाला के रहायशियों का एहतजाज। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास बताइएगा। बिल्कुल जी, ये प्रोटेस्ट जो है वह एहतजाज खिदरवाला पर किया गया है और खिदरवाला अड्डा पर यह एहतजाज किया गया जहाँ से मुजाहिरीन ने मरीदवाला रोड जो है ब्लॉक कर दिया। उनका मुतालबा है कि फ्री आटा जो है हुकूमत तकसीम कर रही है उसका सेल पॉइंट जो है वो खिदरवाला में भी लगाया जाए, क्योंकि समंदरी और खिदरवाला का जो सफ़र है वो 20 किलोमीटर तकरीबन बनता है। और उनका ये मुतालबा है कि अगर समंदरी से हम आटा लेने जाते हैं तो 200 रुपये हमारा किराया लग जाता है और उसके बाद जो है वो सारा दिन लाइन में लगने के बाद भी अगर हमें आटा नहीं मिलता तो एक तो हमारी दिहाड़ी जो है वो टूट जाती है, ऊपर से किराया लगाकर हम इतनी दूर जाते हैं। तो उनका ये मुतालबा किया कि यहाँ पर ही उनका सेल पॉइंट जो है वो कायम किया जाए, जो कि एक दिन पहले यहाँ पर आटा उनको दिया जा रहा था, लेकिन आज जो है वो उनका सेल पॉइंट खत्म किया गया। तो उसके बाद जो है मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए और रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर आटा देना है तो बाइज़्ज़त तरीके से हमें यहाँ पर सेल पॉइंट कायम किया जाए। इस हवाले से उन्होंने मुजाहिरीन ने जो है वो रोड भी ब्लॉक जो है वो किया है। जी वकास जमील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
टोबा टेक्सिंग के तमाम 52 यूटिलिटी स्टोर पर मुफ्त आटा की सप्लाई को रोक दिया गया। महकमा खुराक ने जिला के तमाम आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटे का कोटा भी बढ़ा दिया। 27 पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दिया जा रहा है, ऐसा कहना है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का। यूटिलिटी स्टोर्स की निस्बत पॉइंट्स पर खुली जगह है। यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों को मुश्किलात का सामना था, ऐसा कहना है फूड कंट्रोलर का। आवाम को बआसानी आटा फराहम करना अवलीन तरजीह है। रोजाना 30,000 से ज्यादा शहरियों को मुफ्त आटा दिया जा रहा है, ऐसा कहना है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के तमाम 52 यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटे की जो फराहमी थी उसको रोक दिया गया, सप्लाई बंद कर दी गई है। अब किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो मुफ्त आटा नहीं मिलेगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि जिला भर में मजमूई तौर पर यूटिलिटी स्टोर समेत 82 पॉइंट बनाए गए थे, ताहम अभी जो है वो पॉइंट्स की तादाद 27 रह गई है और इन 27 पॉइंट पर वो आटा भिजवाया जाएगा जो पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर भिजवाया जा रहा था, यानी कि 27 यूटिलिटी स्टोर्स पर कोटा भी बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है शुमाइला बानो, उनका ये कहना है कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर लोगों की दाद भी आएगी। इस हवाले से उन्होंने बेहतरीन इंतजाम भी किए कि यूटिलिटी स्टोर्स में जगह तंग थी, वहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा ने मुफ्त आटे के स्टॉल्स का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की जानब से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर जो रमज़ान पैकेज के हवाले से मुफ्त आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ का विजिट किया जा रहा है और इंतजाम का भी जायजा लिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद मैडम, बताइएगा, आपने विजिट भी किया है और जितने भी यहाँ पर आटा लेने के लिए आए हैं उनसे बातचीत भी की है, क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये पीएम और जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं उनके विजन के मुताबिक ये फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं और इनके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से ये जो हज़रात हमारे पास ख़वातीन हज़रात आए हैं इनको हम आटे की तरसील को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं विच आई वुड लाइक टू एड्रेस कि जिन लोगों को मैसेज नहीं आया लेकिन वो समझते हैं कि वो लेस इनकम के लोग हैं, 60,000 से कम उनकी माहाना इनकम है, तो वो पहले अपने आप को जाके बिस सेंटर्स पे रजिस्टर करवा लें। मैसेज आ जाए तो उसके बाद आटा लेने आए। सेकेंडली ये कि एक आटे के बैग मिलने के बाद 8 दिन का इंतजार है, उसके बाद दूसरा आटे का बैग मिलेगा, तो कुछ उस वजह से थोड़ा सा भी रश ज़्यादा देखने को आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज किया है। इधर अभी 570 आटे का बैग था जो तकसीम हो गया है। हम कमालिया का कोटा भी हमने बढ़वा दिया है ताकि जितनी लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक हम जो आटे की फराहमी है उसको हम मैच करें। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे 5300 बैग्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पीसफुली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। परसों 5700 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ये स्मूथली सारा काम चले। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि तकरीबन 500 से रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 बना मॉडल हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा की आवाज़। सिटी 41 की खबर पर नोटिस लेते हुए हाई स्कूल में आटे के पॉइंट्स को ख़त्म करके रजाना रोड पॉइंट में ज़म्न कर दिया गया। कुर्सियां लगा दी गईं, काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 बना मॉडल हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा की आवाज़। सिटी 41 की खबर पर नोटिस देते हुए हाई स्कूल में आटे के पॉइंट्स को खत्म करके रजाना रोड पॉइंट में जूम कर दिया गया। कुर्सियां लगा दी गईं, काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। आटा पॉइंट्स पर हेल्थ कैंप भी लगा दिए गए हैं। शहरियों के लिए पॉइंट्स पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। काउंटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। तलबा और असातिज़ा ने सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा किया है। मॉडल स्कूल पॉइंट्स को रजाना रोड पॉइंट में जम्न कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 ने गुज़श्ता रोज़ खबर दी थी कि मॉडल हाई स्कूल में जो आटे के पॉइंट्स हैं वहाँ पर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है, तो वहीं पर तलबा भी मुश्किलात में घिरे हुए नजर आते हैं, जिस पर टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने नोटिस लिया और इस मॉडल बाजार पॉइंट को ख़त्म करके दूसरे पॉइंट में जो है वो मुंतकिल कर दी गई। बिलाशुबा शहरियों की मुश्किलात भी कम होंगी। महकमा खुराक जो है वो इन तमाम तर मामलात को देख रहा है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शुमाइला बानो से बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम, बताइएगा कि ज़िला भर में कितने पॉइंट्स पर जो है वो आटा दिया जा रहा है, लोगों को कितना आटा डेली मिल रहा है और किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? जी, वज़ीर आज़म जनाब पाकिस्तान के और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब भर में इस वक्त मुफ्त आटा की तकसीम जारी है। ज़िला टोबा टेक्सिंग में इस वक्त 27 पॉइंट्स पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ से मुफ्त आटा हासिल कर रहे हैं। इस वक्त ज़िला भर में 27 पॉइंट्स पे मुफ्त आटा की तरसील जारी है।
मैडम ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा भी किया गया है, स्टाफ भी बढ़ाया गया है और काउंटर भी बढ़ाए गए हैं। जी बिल्कुल, हेल्थ काउंटर भी कायम किया गया है, सिक्योरिटी के भी इंतजाम ज़्यादा किए गए हैं और जो काउंटर्स हैं वो भी उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के ताजरों ने गरीब आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान करप्शन को दावत के मुतरादिफ करार दे दिया है। कहते हैं वफाकी हुकूमत को इंडस्ट्री के लिए डीजल सस्ता करना चाहिए, इससे लोगों का रोजगार बहाल होगा, कुव्वत खरीद बढ़ेगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के ताजिरों ने गरीब आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान करप्शन को दावत करार दे दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। वो खास तौर पर गरीब आवाम को सस्ता दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। इस पर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उनकी जानिब से कहना है कि ये जो प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इसमें बहुत सारे अबहाम हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पर ताजिर बरादरी क्या सोचती है, उनकी क्या राय है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर हैं। जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से जो प्लान दिया गया है, इसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं? जी भट्ट साहब, वैसे अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पेट्रोल को सस्ता किया जा रहा है, लेकिन ये तरीकाकार सही नहीं है। इसमें अबहाम के अलावा करप्शन का बहुत बड़ा अंसर जो है वो शामिल है। आप किस तरह ये कर लेंगे कि एक मोटरसाइकिल वाला है, अब पेट्रोल पंप पे वो जाएगा, उसको 100 रुपये लीटर सस्ता मिल रहा है, 800 सीसी वाली गाड़ी को सस्ता मिल रहा है। इसका रिकॉर्ड रखना, इसको सारा करना एक मुश्किल काम है। ये हर वो काम क्यों करते हैं जिसमें करप्शन का अनासर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इससे बेहतर ये है हमारी इंडस्ट्री को जो डीजल इतना महंगा मिल रहा है, लोगों का रोजगार बहाल करने के लिए वो डीजल सस्ता करें, हम जनरेटर चला के लोगों का रोजगार बहाल कर सकें। एक ये सबसे अच्छा तरीका, इसको सब्सिडाइज करें, इसको थोड़ा सा कम रेट पे करें। इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों को आपने लाइनों में लगा के फकीरों की तरह उनको पेट्रोल, जब किसी के पास रोजगार ही नहीं है तो उसने गाड़ी या मोटरसाइकिल कैसे चलाना है? पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल देने से पहले देखेंगे आपकी गाड़ी 800 सीसी है कि नहीं। आप पहले कागज दिखाएं आपकी गाड़ी क्या 800 सीसी है, 600 सीसी, फिर आपको पेट्रोल। बट साहब ये पहले भी हो चुका है। जो सस्ता आटा स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की थी उसमें इतनी बड़ी करप्शन हुई थी कि एक दुकानदार, उसका कोटा 100 थैले का था, उसको 50 थैले दे के 100 पे साइन करा लिए जाते थे और 100 थैले को बाहर जाके बेच दिया जाता था। यही वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप ऐसा काम। शिराज में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद हुक्काम की तवज्जो का मुंतज़िर। 2 साल कबल 100 बेड एमरजेंसी वार्ड, MRI मशीन और मेन मेडिसिन स्टोर से मुतालिक PC1 मंजूर ना हो सका। लागत में 100 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। असदार हुसैन से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल जनरल गुलामदाबाद इंतजामिया की जानिब से 100 बेड पे इजाफे की जो है एमरजेंसी वार्ड और इसके साथ साथ मेन मेडिसिन स्टोर और MRI मशीन समेत दीगर मशीनरी के हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है वो तकरीबन 2 साल से PC1 जो है वो जमा करवाया जा रहा है और अभी तक जो है PC1 मंजूर नहीं हुआ और इसके साथ साथ अब इसकी लागत में जो है वो इजाफा हो चुका है। कितना लागत में इजाफा हुआ है और 100 बेड जो एमरजेंसी वार्ड बनाया जा रहा है, इसमें कौन कौन से वार्ड शामिल होंगे, कौन कौन से अमराज के वार्ड शामिल है। हमारे साथ MS जनरल गुलामदाबाद डॉक्टर आमिर नवी साहब मौजूद हैं। सर बताएं कौन कौन से वार्ड का इजाफा होगा? जी, ये यहाँ पे 100 बेड की एक एमरजेंसी है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की एमरजेंसी जो उधर होगी, जिसमें चिल्ड्रन, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, आई और इसी तरह मुकम्मल शोबे जो यहाँ पे फ़ाल हैं उनकी एमरजेंसी सेपरेट से अलग हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें एक MRI मशीन का इजाफा किया गया है रेडियोलॉजी में। पहले हमारे पास CT स्कैन मौजूद है, MRI नहीं है, और MRI का इजाफा होगा इसमें। और इसी तरह इसकी बेसमेंट में जो है हॉस्पिटल में मेडिसिन के स्टोर अवेलेबल नहीं है तो इसकी बेसमेंट में स्टोर बन जाएंगे। ठीक है। और जो इसकी पहले कास्ट थी वो तकरीबन थी 1483 मिलियन और अब जो नई कास्ट आई है वो आई है 2457 मिलियन, जिसका हमने दोबारा फिर जो है दोबारा री एस्टीमेट बना के गवर्नमेंट को सेंड कर दिया। इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर PC1 पे काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि सर जो माली अपडेट करने के लिए। महकमा हाईवे फैसलाबाद की तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी। शहर में 50 करोड़ से ज़ायद रोड सेक्टर की स्कीमों के काम इल्तिवा का शिकार हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، محکمہ ہائی وے فیصل آباد روڈ کنسٹرکشن کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد میں مختلف علاقوں میں 50 کروڑ سے زائد کی روڈ سیکٹر کی اسکیمیں التوا کا شکار ہو چکی ہیں۔ پی پی 111 میں بھی روڈ سیکٹر کی اسکیمیں التوا کا شکار ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد میں سی سی 1 میں 7 کروڑ لاگت کے جو ترقیاتی کام ہے التوا کا شکار ہو چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گجر بستی ماڈل ٹاؤن میں 8 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کام التوا کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہ محمد چوک تا سرگودا روڈ میں جو ہے وہ تمام تر ترقیاتی کام جو ہے وہ التوا کا شکار ہو چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سی سی 49 اور 50 میں روڈ سیکٹر کی اسکیمیں جو ہیں وہ بھی التوا کا شکار ہو چکی ہیں۔ 6 کروڑ سے زائد کے فنڈ جو ہے وہ ان سڑکوں کے لیے رکھے گئے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ تاج کلونی بولے دی چکی میں گلیوں کی بحالی کے لیے 9 کروڑ 66 لاکھ کے فنڈز رکھے گئے تھے، وہ بھی التوا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ ختیجہ ہاسپٹل تا ٹاور سٹی جو ہے وہ فیصل آباد میں سی سی 61 اور 62 میں جو ہے وہ گلیوں کی بحالی کے لیے 9 کروڑ سے زائد کے فنڈز رکھے تھے۔ تاحال جو ہے وہ روڈ کنسٹرکشن کا کام کنٹریکٹرز اور ایس ڈی او کی جانب سے جو ہے وہ ترقیاتی کام جو شروع نہ کیا جا سکے، ان تمام نام عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے رواں سال کے دوران رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ٹیکس گزاروں کے خلاف ٹیکس چوری، حقائق چھپانے سمیت مختلف معاملات میں 200 سے زائد کیسز کی تحقیقات کی گئیں۔ بات کرتے ہیں عمیر عصمت سے۔ عمیر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن میں رواں مالی سال کے دوران اب تک جو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ افراد ہیں اور ان کی جانب سے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں، یا پھر ان کی جانب سے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں حقائق چھپائے گئے، یا پھر وہ غیر رجسٹرڈ افراد جن کی جانب سے 1000 سی سی سے بڑی گاڑیاں خریدی گئیں، یا پھر ان کی جانب سے کوئی پراپرٹیز فروخت کی گئی ہیں، تو ایسے 200 افراد کے خلاف انکوائریاں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات کی گئی ہیں، اور ان کیسز میں فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کی جانب سے 1900 ملین روپے ٹیکس ریکوری کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جس میں سے اب تک مجموعی طور پر ان کیسز میں ایف پی آر حکام کے مطابق 500 ملین روپے کی ریکوری کی جا سکی ہے۔ اس میں اگر کیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ لائل پور زون میں کیسز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہ ٹیکس گزاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ لائل پور زون میں 116، چناب زون کے 44 کیسز ہیں، اسی طرح کارپوریٹ زون کے 25 اور جھنگ زون جس میں جھنگ، ٹوبا اور شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عید کا سیزن سر پر، لیکن منڈیوں میں ریٹس میں بہتری نہ آ سکی، یان مارکیٹ میں تاحال گاہکی بہتر نہ ہو سکی، لومز بند ہونے سے زیادہ مسائل سامنے آنے لگے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ عید کا سیزن شروع ہوئے ہے، رمضان المبارک کا بالکل ایام شروع ہونے کو ہے، لیکن تاحال ابھی بھی منڈیوں میں ویرانیاں ہیں۔ پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد کپڑے کا گڑھ ہے، لیکن تاحال ابھی بھی قیمتیں فی میٹر اتنی مہنگی ہیں کہ عوام کی پہنچ سے دور ہے۔ فیصل میاں داد اور پاور لوم سے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیصل بھائی، کیا دیکھتے ہیں ابھی بھی جو خام مال بہت مہنگا ہے، اور کیا بنیادی وجوہات سمجھتے ہیں کہ عید کا سیزن کیا رمضان کے مڈ میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ میں اس کو دو چیزیں ہیں، میں بیسک ان کی دو چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاہکی کم ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ را مٹیریل ایکسٹرا آرڈنری ریٹس ڈبل ہو گئے تقریباً۔ دوسرا جو یہ الیکٹریسٹی کے بل ہیں انڈسٹری کو آ رہے، اور گیس کے بل جو آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے ریٹس اتنے زیادہ ہائر ہیں کہ لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے نا، وہ ظاہری بات ہے لیبر وغیرہ یا پے اتنی نہیں بڑھی، انکم اتنی نہیں بڑھی، جس وجہ سے ان کی بائنگ پاور ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس وقت تو پاکستان میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ 80 سے 90% لوگ جو ہے وہ بالکل لوور مڈل کلاس ہیں، تو وہ ان کو روٹی اور بل کا ہی پڑ گیا ہے، کپڑوں کے ان کے ذہن میں کوئی چیز آ ہی نہیں رہی۔ کپڑوں کی ان کے ذہن میں چیز نہیں، بالکل صحیح۔ بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک کی آمد، سیزن پیک پر مگر کپڑے کا کاروبار شدید متاثر، ہول سیل کپڑا مارکیٹوں کے دکاندار مہنگائی اور کاروباری حالات سے شدید پریشان ہیں۔ بات کر لیتے ہیں فضیل احمد سے۔ فضیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آج ہے، لیکن جو کپڑے کا کاروبار کرنے والے تاجر ہیں ان کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن کپڑے کا کاروبار جو ہے وہ شدید مندی کا شکار ہے۔ کاروبار کرنے والے جو دکاندار ہیں، چھوٹے کاروباری طبقہ جو ہے وہ اس وقت شدید پریشان ہے کہ عید کے موقع پر ہی سیزن ہوتا ہے کاروبار کا، لیکن اس کے باوجود کپڑا مارکیٹوں کے اندر ہو کا عالم ہے، جس کی وجہ سے دکاندار جو ہیں وہ کرائے پورے کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ شیخ محمد فیصل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا کیا کہتے ہیں، عید جو ہے وہ سر پر آ چکی ہے، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، لیکن کاروبار کے کیا حالات ہیں، کیا کہتے ہیں؟
देखें जी, त्यौहार होता है, त्यौहार पे हर बंदा सूट स्टिच कराता है, मगर महंगाई उस कंडीशन में आ गई है कि अगर हम कंपैरिजन करें ना पिछले साल रमज़ान का या ईद का, तो 62% डॉलर हमारा इंक्रीज़ हुआ है। हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो डी वैल्यू हुई है। देखें, उसके साथ महंगाई इतनी आ गई है कि हमारा कपड़ा गरीब की पहुंच से आप बिलीव करें ख़त्म हो चुका है। गरीब बेचारा इस वक्त सिर्फ राशन के पीछे पड़ा हुआ है, और हम कपड़े वाले जितने भी ताजर हैं, जो कहा जाता था कि मईशत में रीढ़ की हड्डी है, टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद, इसको इतना नज़रअंदाज किया गया, इतना नज़रअंदाज किया गया कि आज इसकी हालत वो है, इतनी बोसीदा हो गई हुई है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ये कहते हैं कि कपड़े का काम मत करना। जी बिल्कुल ताज, बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। रमजान मुबारक से पहले फेस्को की फुर्तियां, फेस्को के तरसीली निज़ाम में बड़ी तब्दीली आ गई। फेस्को ने 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की लोड बैलेंसिंग कर दी। आपको बता रहे हैं, रमजान मुबारक से पहले फेस्को की फुर्तियां, फेस्को के तरसीली निज़ाम में बड़ी तब्दीली। फेस्को ने 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की लोड बैलेंसिंग कर दी। मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, माह रमजान मुबारक से पहले फेस्को की जानिब से जो है वो बड़े पैमाने पर सिस्टम में तब्दीलियां की जा रही हैं। फेस्को ने 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की लोड बैलेंसिंग जो है वो कर दी है। ट्रांसफार्मर खराबी की सूरत में तमाम ऑपरेशन स्टाफ को भी मुतहरिक कर दिया गया है। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि 4000 से ज्यादा जो फेस्को के ट्रांसफार्मर है जिससे बिजली शहरियों तक फराहम की जाती है, उनकी लोड बैलेंसिंग का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है, ताकि माह रमजान मुबारक में बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। और अगर फैसलाबाद शहर भर के किसी भी इलाके में किसी तकनीकी मसाइल की वजह से ट्रांसफार्मर खराबी जो है वो सामने आती है, तो तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है कि बर वक्त ट्रांसफार्मर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिलियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम खान रियाज की अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग। दौरान मीटिंग जिला में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से, बताइएगा वकार। अजी डीपीओ चिलियोट वसीम रियाज खान की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें ज़िला भर के जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है और रमज़ानुल मुबारक में अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। आज के इजलास में रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। डीपीओ ने तमाम जो मेंबरान अमन कमेटी हैं उनसे इस्तदा की कि रमज़ान मुबारक में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन किया जाए। मसाजिद की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ने प्लान तरतीब दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी किस्म के शर्पसंद अनासर की फौरी तौर पर निशानदेही की जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में आम इंतखाबात की बात करें तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात करें पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो कि 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाएगी, चाहे वो रिजर्व सीटों के लिए अप्लाई किया हुआ या आम नशस्तों के लिए अप्लाई किया हुआ। तो उसके बाद जो फैसलाबाद में 21 है, पूरे पंजाब में 297 नशस्तें हैं जिन पर कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। और इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर आज के बाद जो है वो एतराज़ात उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार कर सकेगा। इसके अलावा वोटर्स कर सकेंगे किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ एतराज़ात। 3 अप्रैल तक इन अपीलों पर जो है वो सुनवाई होती रहेगी, अपीलें सुनी जाती रहेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये होगी कि यहाँ पर 4 अप्रैल को जो है वो हतमी फरिश्ता भेजा की जाएगी। 5 अप्रैल को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस हासिल कर सकेंगे। 6 अप्रैल को उम्मीदवार जो अपने टिकट्स पार्टी के जमा करवाएंगे तो उन्हें इंतखाबी निशान अलाट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल को पोलिंग होगी। तो वाज़ेह रहे कि यहाँ पर फैसलाबाद में जो है वो 21 नशस्तें जिन पर पोलिंग होने जा रही है। पूरे पंजाब में 297 नशस्तें जिन पर पोलिंग होने जा रही है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मीटिंग्स का इनेकाद कर रहा है ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल बनाए जाएँ और सिलसिले में जो फंड्स की कमी दरपेश आ सकती है उस मसले का हल निकाला जा सके। ताहम कुछ दिनों में कंफर्म बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। झंग में हेल्थ कैंप का तीसरा दिन है। पहले 2 रोज के दौरान जिला भर में 6000 से ज्यादा शहरियों का हेपेटाइटिस और HIV समेत दीगर टेस्टों की स्क्रीनिंग कर ली गई। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
भर की तरह जंग में भी जो है वो हेल्थ कैंप का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 2 दिनों में महकमा सेहत की जानिब से जो है वो ज़िला भर में 6000 से ज़ायद जो शहरी हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनको मुफ्त जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं CEO हेल्थ डॉक्टर सलमान साहब से, मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ज़िला भर में अब तक का जो टारगेट है वो कितना आपने मुकम्मल कर लिया है और आज आखिरी दिन है, क्या तवक्को की जा रही है कि कितने जो शहरी हैं उनको इस फैसिलिटी से जो है वो मुस्तफीद होंगे? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मौका दिया ताकि पब्लिक तक हमारी अप्रोच हो सके। डिपार्टमेंट ने हमें जो टारगेट दिया था DHQ के हवाले से 1000 पर डे का था, THQ का 500 पर डे का और RSC का 300 पर डे, ऐसी BHP हमारा एक इन्वॉल्व था जिसका 50 का टारगेट था। अब तक की जो सूरत हाल है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम विज़िट कर चुके हैं, मेरे ऑफिसर्स विज़िट कर चुके हैं, ये टारगेट से हम अबव जा रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमने 7000 तक अब तक हम अचीव कर चुके हैं, यानी जो DHQ को, THQ, RSC, BHQ सबका टारगेट हम मोर देन टारगेट हम अचीव अब तक कर चुके हैं। और आज भी मैं जो 3rd डे हमारा है कैंप का, मैं अब DHQ में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर वसीम का DHQ हॉस्पिटल चिन्यूट का दौरा, मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर बताइएगा। पंजाब भर में सेहत मेले का तीसरा रोज़ा है। कल सेक्रेटरी हेल्थ अली जान जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न का दौरा कर रहे थे और आज एडिशनल डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर वसीम ने DHQ चिन्यूट अस्पताल का विजिट किया और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है उसके इंतजामात का भी उन्होंने जायज़ा लिया है। मरीजों से भी उन्होंने गुफ्तगू जो है वो की है। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। इसी सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, आज आपने चिन्यूट का विजिट किया, कैसे इंतजामात हैं, क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह महकमा सेहत जो है वो उन्हें हल कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह चिन्यूट का DHQ हॉस्पिटल है जहाँ पे सेहत मेला लगाया गया है। बहुत अच्छी यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट की है, सफाई बहुत अच्छी है, इंतज़ामात इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ के किए हैं और उसमें ये है कि अपना इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लोगों की सहूलत के लिए, पेशेंट्स की सहूलत के लिए इन्होंने 4 काउंटर रजिस्ट्रेशन के बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स फारग भी हों और उनको फैसिलिटेट भी किया जा सके। इन्होंने आगे स्क्रीनिंग के लिए भी 2 स्टेशन बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, टारगेट बहुत ज़्यादा है, 1000 के करीब जो है इनका टारगेट, जो कि 450 के करीब इन्होंने पहुँच गए हैं। तो बाकी माशाल्लाह स्टाफ बहुत मुस्तनिद है और बड़े अच्छे तनदोही से काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बाबर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लालिया में भी हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। THQ अस्पताल लालिया में आज उसका आखिरी दिन है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो हफ्ता सेहत है वो पंजाब भर में मनाया जा रहा है और 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक 3 दिन के लिए लालिया में भी जो हफ्ता सेहत है वो मनाया जा रहा है। और इसके लिए THQ हॉस्पिटल लालिया, RHC बड़ाना और RRC अहमदनगर में 3 जगह पर जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर तमाम तरह जो टेस्ट हैं वो भी फ्री हैं। और इसी के साथ साथ जो 9 किस्म के जो काउंटर्स हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर जो लोगों का है वो इलाज हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं MS THQ हॉस्पिटल लालिया डॉक्टर एहसान इलाही, उनसे सर बताइएगा कि आज आखिरी दिन है हफ्ता सेहत के नाम से जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फीडबैक है, लोगों का क्या फीडबैक है और कहां तक जो सहूलियात हैं वो दी गई हैं? जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये 3 रोज़ा हफ्ता सेहत यहाँ पे उसका आगाज़ 20 तारीख को किया गया है। इसके पीछे दर हकीकत मकसद ये है कि उन बीमारियों से मुतल्लिक मरीज़ों को स्क्रीन करना जिनका आम तौर पर उनको पता नहीं चलता। अब जिस तरह हमारे यहाँ NCD की ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा COPD, अस्थमा है, ये वो बीमारियां हैं जिनसे मरने वाले लोगों की तादाद 46% है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में लोगों को आगाही नहीं होती। तो इस बलोच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।